Okay, welcome back after break. और ब्रेक में जाने के बाद आने के बाद आप सभी का स्वागत है। So, we were looking at how to understand the revelation of God's will. और हम देख रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रकाशन प्राप्त कर सकते हैं। And we were looking at the fourth point God desires for us to know His will. चौथा बिंदु हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसकी इच्छा को जानें। And we were looking at Colossians chapter 1, और हम sorry, कुलुसियों पहला अध्याय 9 and 10. 9 और 10 वचन को देख रहे हैं। So now let's look at Ephesians chapter 5, verse 8 to 10 and verse 17. It's on page number 6, so everyone can read Ephesians chapter 5, verse 8 to 10 and verse 17. और अब हम जो है इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 8 से 10 और 17 वचन देखेंगे जो हिंदी में पेज नंबर 8 की पुस्तक में उपलब्ध है। What does Paul say in verse 17? और 17 वचन में पौलुस क्या कह रहे हैं? Don't be unwise. निर्बुद्धि ना हो। So in the Greek, this word unwise means don't be senseless or foolish or lacking reflection. और देखिए यूनानी भाषा में अगर निर्बुद्धि को देखें तो ऐसे मत बनिए, बेवकूफ मत बनिए जिसके अंदर में कोई भावना नहीं होती, इस प्रकार के ना बने। So Paul is urging us not to act irrationally, but to use God given minds to discern his will. और पौलुस यहाँ पे इस प्रकार कह रही है कि हम परमेश्वर के दिए हुए मन का इस्तेमाल करके उसकी इच्छा को जानें। Now, the word understand in Greek means to put ideas together. और देखिए यूनानी भाषा में अगर समझ शब्द के अर्थ को समझे तो उसका मतलब होता है कि हम विचारों को एक साथ सम्मिलित करते हैं। That means he wants us to process things and reason clearly. और इसका मतलब है कि हम चीजों को विचार करें और स्पष्टता के साथ में उसके ऊपर में सोचेंगे। So this shows that God expects us to use our intellect, our mind, our critical thinking along with his word in discerning his will. और इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपनी बुद्धि और अपनी सोच जो कि स्पष्टता के साथ में परमेश्वर के वचन को मिलाकर परमेश्वर की इच्छा को परखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे करना चाहिए। Now sometimes we over spiritualize things. और कई बार हम ज्यादा धर्मी हो जाते हैं। We pray and wait for God to show us a spiritual sign when already God is giving us answers through our circumstances or to patterns that He's showing us in our lives. और कई बार हम प्रार्थना कर परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर अलौकिक चिन्हों को हमें दिखाए, जबकि परमेश्वर पहले से ही हमारी परिस्थितियों के मध्य में कई तरीकों से अपनी इच्छा को जाहिर कर चुका है। So, for example, you want to work along with somebody, or you want to start ministry with somebody, or business with somebody, you want to do ministry with someone else, and you're praying, God, do you want me to do ministry with this person? And God is saying, look at what I have already showed you. Now, you're not getting an answer, then you look at what God has already showed you. Means God has already showed you that, hey, this person is, maybe he's not the right person because he's short tempered, not honest, not a person of integrity. You just can't work with such a person. और देखिए आप उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि आप किसी के साथ सेवकाई करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और आप परमेश्वर से पूछ रहे हैं और परमेश्वर आपको कहता है कि मैं पहले ही बतला चुका हूँ, उसमें जाकर देखो कि जिसके साथ आप काम करना, व्यापार करना या सेवकाई करना चाहते हैं कैसा है वो, क्या वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, क्या ईमानदार नहीं है, कपट रखता है, अपने मन के अंदर वो व्यवहार वाला है। अगर ऐसा है तो आप उसके साथ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। But we are endlessly waiting for yes or no answer from God, and God is saying, through situations, through circumstances, through your connect or relationship with that person, I'm already showing you you can't work with this person. और देखिए हम तो इंतजार करते रहते हैं परमेश्वर के हाँ और ना का, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं पहले ही बता चुका हूँ कईयों बार कि आप ऐसे व्यक्ति से
साथ में कार्य नहीं कर पाएंगे। So recently I was praying about, something in my life, and I was asking God to show me if this was the right direction for me. और देखिए अभी कुछ समय पहले मैं अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर से मांग रही थी, परमेश्वर आप मुझे दर्शाएं कि ये दिशा सही ओर है या नहीं है। And I was asking God, give me an answer. Why aren't you answering me? और मैं परमेश्वर से बोल रही थी, परमेश्वर आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते, आप मुझे उत्तर दीजिए। And I felt God telling me, hey, I've shown you through so many instances. I want you to look at them, use your mind, and you will realize that this is not the right path, or this is not the right person, or this is not the right connect. और देखिए मुझे ऐसा लगा परमेश्वर मुझसे इस बात को कहना मांग रहे हैं, कृपया करके उन बातों को देख जो पहले से ही मैं तुझे बतला चुका हूँ, अपने मन में इस बात को समझ ले कि मुझे लगता है कि मैं बतला चुका हूँ कि ये सही मार्ग नहीं है, सही नहीं है, सही काम नहीं है जिसमें तुझे आगे बढ़ना चाहिए। You're able to understand? आप समझ पा रहे हैं? So sometimes when people come and ask me to pray for certain things, और कई बार लोग आके कुछ बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, uh, I know that we can pray, but prayer is just not the answer. और हम इस बात को जानते हैं कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रार्थना ही उसका उत्तर नहीं है। There's something that a person has to do, and it's already written in God's word what they have to do. और देखिए जो पहले से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है उस व्यक्ति को वो करने की आवश्यकता है। So, for example, when we go to North India for mission trips and we pray for people, many people come with knee pain and joint pains and all of those things. और जब उत्तर भारत के अंदर में हम किसी सेवा कार्य के लिए जाते हैं तो लोग बहुत सारे लोग प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, किसी के घुटने में, किसी के पैर में, किसी के पेट में, किसी की कमर में दर्द होता है और वो प्रार्थना के लिए आते And हैं। a long line just for this knee pain, joint pain, back pain, and all of those और things. वो लोग एक लंबी कतार बना लेते हैं केवल किस लिए, कि केवल कमर दर्द, पेट दर्द, घुटना दर्द की प्रार्थना करवाने के लिए। So then I pray for them, but then I ask them, do you eat potatoes? और मैं उनके लिए प्रार्थना तो करती हूँ, लेकिन मुझसे पूछती हूँ, क्या आप आलू खाते हैं? And they say हम yes. कहते हैं हाँ। And I know North Indians love और potatoes. हमें पता है कि उत्तर भारतीय आलू को बहुत पसंद करते हैं। And I tell them, you stop eating potatoes, it will reduce the pain in your joints and your knees. और उनसे कहा जाता है कि आलू खाना बंद कीजिए, आपके घुटनों का और जोड़ों का दर्द भी कम हो जाएगा। And they look really puzzled at me because they want me to lay hands and do the supernatural and the pain to go like that. और बड़े अचंभित होकर वो देखते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये हाथ रखेंगे स्वर्गदूत आकर ऊपर से एकदम चंगा कर देगा तुरंत नहीं पर। They think the spiritual is important. Yes, the spiritual is important, but also we need to use our reasoning and eat right so that we can be healthy. और देखिए हाँ जरूर अलौकिक की चंगाई की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी खुदा का दिया दिमाग जो है उसका भी इस्तेमाल करना है, सही से भोजन करना है, ठीक ठाक रहना है। Yes, so when God reveals His will, it's our responsibility to do what is acceptable to the Lord. और परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट तो करता है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से पूरा करें। So the English word for acceptable can sound like, okay, just enough like that. और देखिए अंग्रेजी शब्द जो है ग्रहण का वो इस प्रकार से सुनाई देता है, ठीक है मान लिया, ग्रहण कर लिया। But in the Greek, it means something more deeper. और लेकिन यूनानी भाषा में अगर हम इस शब्द के अर्थ को समझे तो ये बहुत गहराई में है। So when you say understand what is the acceptable will of God, it means understand what is the agreeable, well-pleasing will of God. और देखिए जब हम कहते हैं कि ये ग्रहण योग्य है, तब यूनानी भाषा में इसका अर्थ होता है कि हम इसमें सहमत हैं, हम इससे प्रसन्न हैं और जल्दी ये पूरा होने पर है। So God's will is not just something that is average, barely sufficient. It is always well-pleasing and complete. और परमेश्वर की इच्छा कुछ ऐसी नहीं है जो काम चलाऊ हो, ऐसा नहीं है कि वो केवल पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसी है जो परमेश्वर को पूर्ण प्रसन्न करने वाली और पूर्ण करने वाली। So we need to know what is the acceptable will of God for our और lives. तो हमें मालूम होना चाहिए हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की ग्रहण योग्यता क्या है। So let's move on to the next one, page number 7, the fifth one. What's the fifth one? और आइए हम पांचवें बिंदु में चले। पांचवा बिंदु क्या है, जो कि आपकी हिंदी में 10 नंबर के पेज पर है। There are some things that remain unknown. Yes. और जो बातें अज्ञात बनी रहती है। So God guides, directs, leads, reveals things to us, but there are some things that remain unknown. और परमेश्वर प्रकट करता है हमारे जीवन में कुछ बातों को, अगुवाई करता है, निर्देश देता है, शिक्षा देता है, लेकिन कुछ
बातें हैं जो अभी भी हमारे जीवन से अनजान रहती हैं। So look at Deuteronomy chapter 29, verse 29. व्यवस्था विवरण 29 देखें। It says, the secret things belong to whom? और गुप्त बातें किसकी हैं? The Lord our God. But things that are revealed belong to whom? परंतु जो प्रकट की गई है वो किसके लिए है? To us and our children forever. और वो हमारे और हमारे वंश के लिए, सदा के लिए है। So what does this verse mean? इस वचन का मतलब क्या है? So there are some things that God has reserved only for himself, और कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने केवल अपने तक सीमित रखी है, and we must be willing to be comforted even if we don't have answers to all questions. और भले ही हमारे पास सारे प्रश्नों का उत्तर ना हो, फिर भी हमें इसमें बने रहना है। Yes, we have answers to most questions that pertains our life to God's guidance, his will, his plan and purpose. और देखिए, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा, योजना, उद्देश्य और उसकी अगुवाई के प्रति अधिकतम उत्तर प्रश्नों के हमारे पास हो सकते हैं। But there are some things which are not revealed to us, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमारे ऊपर में प्रकट नहीं की गई है, and we can live with peace knowing that these unanswered areas or unanswered questions, perhaps God knows it's not relevant for us to know, or it's not important for us to know. और फिर भी हम अपने जीवन को शांति में व्यतीत कर सकते हैं, इस बात को जानते हुए कि कुछ क्षेत्रों में हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि वो हम पर प्रकट हो। ऐसा नहीं कि वो महत्वपूर्ण नहीं है या हम जानना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर परिस्थिति के अंदर में हम शांति में जीवन को व्यतीत करें। And we can still have peace in that situations. We can, peace that is beyond our understanding. और फिर भी ऐसी परिस्थितियों के मध्य में हम शांति को महसूस कर सकते हैं, कैसी शांति जो हमारी समझ के बाहर है। And this peace we have even if we don't understand और ये शांति तब भी, भले ही जब हमें समझ में नहीं आता है what God is doing, और कि परमेश्वर क्या कर रहा है, we just let go of it and say, God, you know the best, you know what is best. You're a good God, you're a loving God. I know the plans you have for me, and the plans you have for me give me hope and a future, and I trust you with it. और हम केवल उसे जाने देते हैं, इस बात को जानते हुए कहते हैं, परमेश्वर हमें मालूम है कि आप हमारे लिए बेहतर जानते हैं, आपके पास हमारे लिए अच्छा है, आप एक भले परमेश्वर हैं, प्रेमी परमेश्वर हैं, और हम इस बात को भी जानते हैं कि आपने मेरे भविष्य के लिए आशा और योजनाओं को बनाए रखा है। Then we move on with what he's indicating, directing, leading, showing us, or revealing in our lives. और तब हम जो परमेश्वर हमारे ऊपर में प्रकट कर रहा है, निर्देश कर रहा है, अगुवाई कर रहा है, हमारे जीवन को दर्शा रहा है, इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। Now let's look at another scripture passage, Romans chapter 12, verse 1 and 2 on page number 8. और आइए एक और परमेश्वर के वचन से देखें, जो कि रोमी पत्री 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन, जो कि हिंदी की पुस्तक में 10 नंबर के पेज पर है। So everyone quickly read Romans 12, 1 and 2. और जल्दी से पढ़ ले रोमियो 12 1 और 2। Now, some people take this verse, especially verse 2, and say there are three categories of God's will, that God's will is good, pleasing, and acceptable. और देखिए, कुछ लोग इस वचन को लेकर इसमें तीन भाग देखते हैं, विशेषकर दूसरे वचन के अंदर में वो कहते हैं परमेश्वर की इच्छा भली है, ग्रहण योग्य है और प्रसन्न करने लायक है। So, what do you think? Is there are three categories of God's will? Is God's will sometimes good? Is it sometimes pleasing? Is it sometimes acceptable? और आप क्या सोचते हैं, क्या परमेश्वर की इच्छा कई बार अच्छी होती है, प्रसन्न करने वाली, या ग्रहण करने वाली होती है? What do you think? आप क्या सोचते हैं? No, we already studied, right? There are no three categories of God's will. और नहीं, हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, परमेश्वर की इच्छा के अंदर में कोई तीन श्रेणियां नहीं है। When we studied fulfilling God's purpose, we said God's will is all the time good, pleasing, and acceptable. और जब हमने परमेश्वर के उद्देश्यों के हमारे जीवन के बारे में
प्रसन्न करने वाली और ग्रहण योग्य है। So, for example, you take an apple. और उदाहरण के लिए आप एक सेब ले लीजिए। You say this apple is red, it smells sweet, it's very tasty. और आप कहते हैं सेब लाल है, ये सेब स्वादिष्ट है और उसकी खुशबू मोहक है। So, am I talking about three different apples? One that is sweet, one that is, smells sweet, one that is red, and one that is tasty? और क्या मैं तीन सेब के बारे में बात कर रही हूँ? एक लाल है, एक सुगंधित है और एक स्वादिष्ट है? No, we're just talking about the same apple, और हम एक ही सेब के बारे में बातें कर रहे हैं, which has all the three characteristics. और जिसके अंदर में तीन चरित्र मौजूद हैं। So there are no three categories of God's will. God's will always for our life at any given time, any given moment is always good, pleasing, and acceptable. और वैसे ही परमेश्वर की इच्छा भी है, वो एक इच्छा है लेकिन उसके अंदर तीन भाग हैं। हर दिए गए समय के अंदर में वो अच्छी है, ग्रहण योग्य है और भली है। Now, when people look at this word acceptable, they say that this word acceptable is actually it means the permissive will of God. और देखिए जब कुछ लोग इस वचन को देखते हैं ना कि परमेश्वर की इच्छा ग्रहण योग्य है, तो वो इस प्रकार समझते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा जो है परमेश्वर की ओर से है। So that's not true. और लेकिन ये सत्य नहीं है। Acceptable does not mean it's permissive will of God. और ग्रहण योग्य इसका मतलब ये नहीं कि ये परमेश्वर की इच्छा एक है। It does not say his will is permissible. और वो ये नहीं कह रहा कि ये परमेश्वर की अनुमति से है। So if you want to understand this, we must look at the rest of scripture. और यदि आप इसको समझेंगे तो आप बाकी के वचन को अगर देखें तो समझेंगे। You look at Paul's writings or you look at the life and ministry of Jesus, we don't see anything as the permissive will of God. और यदि आप पौलुस के लेखन को देखें, यीशु मसीह के जीवन को देखें, तो वहां पर कुछ भी ऐसा परमेश्वर की इच्छा जो परमेश्वर की अनुमति की इच्छा हो वो नजर नहीं आता है। So for example, let's look at the life of Jesus. और उदाहरण के लिए हम यीशु मसीह के जीवन को देखें। Now when sick people came to Jesus, और जब बीमार लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, did Jesus tell anyone it may be God's permissive will for you to remain sick? और क्या यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि ये परमेश्वर की अनुमति इच्छा है कि तुम बीमार बने रहो? Did Jesus say that to anybody? या किसी से ऐसा? No, madam. No. What does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? He always heals and says, your faith healed you. Yes. And at times when multitudes came, it says Jesus healed them all. और देखिए कई जगह पे जब भीड़ की भीड़ आई तो ऐसा लिखा है यीशु मसीह ने सभी को चंगा किया। And everyone who came to him in faith were healed. और हर एक जो विश्वास में यीशु के पास में आए वे चंगाई प्राप्त करते हैं। So Jesus never tells anyone it's God's permissive will for you to stay sick. और यीशु मसीह ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि ये तुम्हारे बीमार रहने में परमेश्वर की अनुमति की इच्छा है। So there is no such thing as the permissive will of God. और इस प्रकार की कोई भी परमेश्वर की अनुमति वाली इच्छा ये ऐसा कुछ नहीं है। Or it's a will that God permits. और Nothing like ऐसी that. इच्छा जो परमेश्वर अनुमति देता हो। Which means that, it's nothing that there's nothing like God says, I will accommodate this for you. और ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर कहता हो कि मैंने ये तुम्हारे लिए अनुमति दिया हो या तुम्हारे लिए बना के रखा हो। So people give some examples. They say, what about the fall of man? और लोग कुछ उदाहरण देते हैं, पूछते हैं मनुष्य के पतन के बारे में आपका विचार क्या है? Why did God permit Adam and Eve to eat the fruit? और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को फल खाने की अनुमति क्यों दिया? Why didn't he stop them? और उन्हें रोका क्यों नहीं? Was that the permissive will of God? और क्या वो परमेश्वर की It was a free will given, the gift of free will, ma'am. Yeah, it was a gift of free will, and they just used their free will. It was not the permissive will of God. और ये तो स्वेच्छा की बात थी, उन लोगों ने अपनी स्वेच्छा का इस्तेमाल किया, ये परमेश्वर की कोई अनुमति इच्छा नहीं थी। What about the wilderness? When the Israelites were traveling the wilderness, they were craving for meat, right? और देखिए जब मरुभूमि में इजरायली लोग यात्रा कर रहे थे तो उन्हें मांस खाने की इच्छा हो रही थी। So what did God do? He परमेश्वर ने क्या किया? gave them what to eat? परमेश्वर ने क्या दिया? Quails. बटेर दी। So is that the permissive will of God? क्या वो परमेश्वर की अनुमति थी?
So the question we must ask is, what is the perfect will of God, and not what is the permissive will of God? और प्रश्न हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि ये इच्छा परमेश्वर की अनुमति से है या नहीं, हमें ये पूछना चाहिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है। So was it God's perfect will for Adam and Eve to sin? क्या Yes or परमेश्वर no? की सिद्ध इच्छा थी कि आदम और हव्वा पाप करें, हाँ या ना? All of you with me or sleeping? आप सभी मेरे साथ हैं या सो गए? No, ma'am. Okay. So what do you think the answer to this question is? Was it God's perfect will for Adam and Eve to sin? और He आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी कि आदम और हव्वा पाप करें? can you No. repeat the question, ma'am? Was it God's perfect will for Adam and Eve to sin? No, no, ma'am. No. Okay. So was it God's perfect will for Israel to have a king? क्या ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी No, no, ma'am. कि का राजा हो? No, right? नहीं। Yeah. So he knew that if they had a king, he knew that there would be slaves to that king. और वो जानता था यदि राजा होगा तो ये इजरायली राजा के गुलाम बन जाएंगे। But did the Israelites ask for a king? और क्या इजरायलियों ने Yes, राजा yes, की they मांग asked for की? king. Yes. Did God give them a king? क्या परमेश्वर ने Yes, दिया? ma'am. So did God allow it? क्या परमेश्वर ने अनुमति दी? Did God allow it? Yes or no? परमेश्वर ने अनुमति दी या नहीं दी? Yes, since it was a free will, so they asked, they give. Yes, it was a free will. So they asked. The people were stubborn, and God had to give them the freedom to choose. और देखिए उनकी स्व इच्छा थी, उन्होंने मांगा क्योंकि वो हट्टी मन के थे। परमेश्वर ने उनकी बात को सुनकर उन्हें दे भी दिया। So you're able to understand what I'm saying? आप समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? Yes or no? हाँ या ना? So let's come to Adam and Eve. और आइए चलिए आदम और हव्वा के पास चलते It says in Psalm 115, verse 16, हैं। और भजन 115 उसके 16 में ऐसा लिखा है, the heavens belong to the Lord, and the earth he's given to mankind. और स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी उसने मानव जाति को दिया है। Now, who did he give the garden to? और यदन की वाटिका किसको दिया था? Adam and Eve. और And what आदम और हव्वा को। and what did he tell them? और उनसे क्या कहा था? Subdue it and take dominion. और इसको अपने अधीन कर लो और इसके ऊपर में शासन करो। That means he gave authority to man. और इसका मतलब है मनुष्य को अधिकार दिया गया So था। God gave the earth as our authority, put it under our responsibility, under our dominion, under our jurisdiction. और इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें उसके ऊपर में अधिकार दिया, हमें शासन करने के लिए दिया और ही हमारे ही न्याय अधीनता के अंदर में पृथ्वी को सौंपा था। So God, in his sovereignty, in his divine will, plan, and purpose, will not step outside what he has entrusted to man. और परमेश्वर अपनी संप्रभुता के अंदर में अपनी दैवीय इच्छा, योजना और उद्देश्य के अंदर मनुष्य को दिए गए जिम्मेदारी में अपनी टांग नहीं अड़ाता। So God gave them the choice to eat told them not to eat the fruit, but it was their choice to eat it or not. और परमेश्वर ने उनसे कहा था कि फल नहीं खाना था, नहीं खाना है, लेकिन ये उनका चुनाव था कि वो खाएं या ना खाएं। So when they ate it, it was not God permitting them, it was just they making their own choice because the free will he's given them. और जब उन्होंने खाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उन्हें खाने की अनुमति दे रहा है, लेकिन ये उनकी स्वेच्छा थी कि उन्होंने चुना उस फल को खाना। So we are responsible for the choices, the will, and the decisions that we make. और देखिए जो योजनाएं और जो इच्छाएं और जो चुनाव हम करते हैं उसके जिम्मेदार हम होते हैं। Yes, we go to God, he guides us, he leads us, he helps us, but does not mean there is something called the permissive will of God. Does not mean he will permit us to do anything and everything. और परमेश्वर जरूर हमारी मदद करता है, अगुवाई करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमें अनुमति दे दिया है तो ये उसकी अनुमति पाई हुई इच्छा है। So let me give you another example. और आइए हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। Now, every city has a law that murder is not allowed. Yes or no? और हर एक शहर में एक नियम है, कत्ल या खून नहीं करना है, हाँ या ना? But do people still go ahead and murder? क्या लोग फिर भी खून करते हैं? Anyone here murdered? हाँ, Okay. है कोई खूनी? So because people go ahead and murder, और क्योंकि लोग खून करते हैं, कत्ल करते हैं, does it mean that the government has a permissive will of allowing murder? क्या इसका मतलब ये है कि सरकार ने अनुमति दे दिया जिसको मर्जी है मार डालो?
No, right? The law still remains the same. Murder is not allowed. और देखिए नियम वैसा ही है, कानून वैसा ही है कि कत्ल अनुमति नहीं है। So even if murder happens, it does not mean it is the permissive law. और यदि किसी का कत्ल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को अनुमति मिल गई है। Similarly, in the realm of God's world or in his sphere of influence, there is no will of God that is permissible, but it is only good, acceptable, and perfect will of God. और बिल्कुल वैसा ही आत्मिक क्षेत्र के अंदर में भी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जिसको अनुमति मिला है, लेकिन हर एक इच्छा परमेश्वर की अच्छी ग्रहण योग्य इच्छा है। So if you're not in the will of God, you're out of the will of God. यदि आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं है तो आप बाहर हैं। There's nothing called a permissive will of God. और ऐसा कुछ भी नहीं है कि परमेश्वर से अनुमति मिला हुआ है। So if for God there is neither, for God there is only black or white, there is nothing gray, no shades in between. और देखिए परमेश्वर के पास सफेद काला है, बीच का कुछ भी नहीं है। The reason why people think there is a permissive will of God is because they misunderstand and misinterpret scripture. और लोग क्यों कहते हैं कि अनुमति पाए परमेश्वर की इच्छा है, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन का गलत अर्थ समझे हैं या तो फिर उन्होंने गलत अर्थ अनुवाद कर लिया। So even if God told the Israelites, you don't need a king, I am your king, they wanted a king, but God allowed it because they insisted and he said, you go ahead and face the consequences for your choice. और देखिए इजरायली लोगों को परमेश्वर ने इस बात को बताया तुम्हें राजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने राजा की मांग करी, और जब उन्होंने मांग करी तो उसके दुष्परिणाम का भी भुगतान उन लोगों ने ही किया। So you're able to understand? आप समझ रहे हैं? Yes or no? हाँ या ना? Okay. So let's move on to page number 10. और आइए हम अगले पन्ने पर चलते हैं। Yes, God leads us and guides us, but we also have our responsibility. और परमेश्वर हमारे को अगुवाई करता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। So what is our responsibility? हमारी जिम्मेदारी क्या है? Yes, we need to seek God's will. और हमें परमेश्वर की इच्छा को खोजने की आवश्यकता है। When we seek, what happens? और जब हम खोजते हैं तो क्या होता है? Seek and you shall और खोजेंगे find. तो क्या होगा? Very good. You shall find. और आपको मिलेगा। Okay, so God invites us to seek Him. परमेश्वर हमें उसे खोजने के लिए बुला रहा है। When we seek Him, we discover the revelations of the things He wants us to do. और जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर हमें वो प्रकाशन देता है जो वो चाहता है कि हम प्राप्त करें। So look at what Jeremiah chapter 29 verse 12 and 13 says. और यिर्मयाह 29 उसका 12 और 13 क्या कहता है, आइए हम उसको देखेंगे। What does God say? When we call upon Him and we pray to Him, what will He do? और परमेश्वर क्या कह रहा है, जब हम उसे पुकारते हैं प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? He will listen to us. और वो हमें सुनेगा। And when we seek Him, what happens? और जब हम उसे खोजते हैं तो क्या होता है? We find me, and when you search for me with all of your heart. और देखिए वो कह रहा है कि जब तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, अपने पूर्ण मन से मेरे पास आओगे। That means we will find Him when we seek Him wholeheartedly. और इसका मतलब है जब पूरे हृदय से खोजेंगे तो हम परमेश्वर को प्राप्त करेंगे। Look at Jeremiah chapter 33 verse 3. और यिर्मयाह 33 उसका 3 वचन को देखें। What does it say? और इसमें क्या लिखा है? God says, call to me and I will answer you. और मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। And great and mighty things that you can do. और बड़ी और कठिन बातें बतलाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। So our seeking leads to finding. और देखिए खोजना हमें उसे प्राप्त करने की ओर अगुवाई करता है। And when we earnestly desire to know His will, और जब हम ईमानदारी के साथ उसकी इच्छा को जानने का प्रयास करते हैं, to inquire about His direction, कि उसकी दिशा निर्देश को प्राप्त कर सकें, we receive His guidance and understanding. और तब हम उसकी सलाह और समझ प्राप्त करते हैं। So we know Matthew chapter 7 verse 7 and 8. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. और मत्ती 7:7 और 8 हम जानते हैं, मांगो तो पाओगे, ढूंढो तो प्राप्त होगा। That's a promise. और वो वायदा है। But again, it says that those who seek God wholeheartedly will receive, will find, and the doors will be open. और फिर से यहाँ पर यदि कोई भी पूरे हृदय के साथ परमेश्वर को मांगता खोजता है, वो प्राप्त भी करेगा।
So we need to ask and seek God's guidance in the normal course of our life, every step of the day. और प्रतिदिन के हर एक कदम और अपने सामान्य जीवन के अंदर में हमें परमेश्वर की अगुवाई को मांगने की आवश्यकता है And we need to tune our hearts and minds to hear from Him. और हमें अपने मन और हृदय को परमेश्वर के सुर में सुर मिलाने की आवश्यकता है ताकि हम उसे सुन सकें So when we do it with every single day, with every simple thing or single thing in a day, when we have to make major decisions, we will be able to understand God's will. But those times we need more focused time for seasons of fasting and praying, maybe a week longer, just spending extra time, reading God's word, praying to Him, waiting on Him, because we're making a major decision in life, and it's important for us to seek Him intentionally. और देखिए प्रतिदिन के कदमों के लिए हम परमेश्वर की अगुवाई की मांग करते हैं लेकिन जब हमें जीवन के अंदर में विशेष निर्णय को लेने की आवश्यकता है तब हमें ज्यादा ध्यान देना अवश्य है वो समय ऐसे हो सकते हैं जब हम उपवास के समय में जाए प्रार्थना करने के समय में जाए हो सकता है एक हफ्ता हो सकता है उससे भी ज्यादा समय हमें लग जाए ज्यादा समय हम बाइबल पढ़ने में बिताएं परमेश्वर के वचन में बिताएं प्रार्थना करने में बिताएं उसका इंतजार करें ताकि जब हम अपने जीवन के संपूर्ण या महत्वपूर्ण निर्णयों को लेते हैं तब हमें परमेश्वर को ईमानदारी के साथ में खोजना अत्यंत आवश्यक है There are times when we are not actively seeking God's guidance, but He still chooses to guide us. और कई बार हम जानबूझकर परमेश्वर की अगुवाई को नहीं खोजते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करने को चुनता है He can just break in and speak to us and reveal things that we did not expect. और देखिए जिन बातों की हमने आशा भी नहीं की होती है परमेश्वर उन बातों को हमें बोल सकता है हम पर प्रकट भी कर सकता है What is the next thing we need to do? और अगली बात हमें क्या करने की आवश्यकता है Listening. और सुनना Look at John chapter 10, verses 1 to 5 and verse 27. यूहन्ना 10 उसका 1 से 5 और 27 वचन देखिए A sheep hears whose voice? और एक भेड़ किसकी आवाज को सुनती है Shepherd's voice. और चरवाहे की आवाज They are so tuned to the voice of the shepherd that when the shepherd calls, they immediately run towards him. और देखिए उनकी कान चरवाहे की आवाज से इतने प्रचलित हो जाते हैं कि उस चरवाहे की आवाज सुनकर तुरंत उसके प्रति प्रतिक्रिया करती हैं If you and I call the sheep, they will not come to us. और यदि मैं और आप अगर किसी भेड़ को बुलाएंगे तो वो आएगी भी नहीं They will not follow a stranger because they don't recognize a stranger's voice. और वो किसी पराये व्यक्ति की आवाज को नहीं पहचानते इसीलिए किसी पराये व्यक्ति के पीछे नहीं जाते हैं So, what are we trying to say here? और हम यहाँ पर क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं That we need to tune our hearts and minds to hear from God. और हमें अपने हृदय और मन को परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए उसके सुर से सुर मिलाने की आवश्यकता है So, sometimes we say, I'm asking God, but He's not guiding me. और कई बार हम कह सकते हैं कि परमेश्वर से मैं पूछ तो रहा हूँ लेकिन वो मेरी अगुवाई नहीं कर रहा But God is speaking, and we are not able to identify or understand or listen to His voice. परमेश्वर तो बोल रहा है लेकिन वो लोग परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पा रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं और जांच नहीं पा रहे हैं So, we need to ask ourselves, are we in the right place at the right time listening to God's voice? और हमें अपने आप से ये प्रश्न करने की आवश्यकता है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए क्या मैं सही स्थान पर सही समय पर मौजूद हूँ या नहीं Or are we entertaining the wrong voices or the voices of strangers in our hearts and minds? और या तो फिर हम गलत आवाजों को परदेशियों की अनजान लोगों की आवाजों को अपने हृदय और मन के अंदर में मनोरंजन कर रहे हैं Look at Psalms chapter 23, verse 3 and 4 on page number 17. और भजन उसका 23 अध्याय उसका तीसरा और चौथा वचन देखें जो कि आपके 16 नंबर हिंदी की पुस्तक में है Psalm 23, 3 and 4, what does it tell us that how does God guide us? और भजन 23 उसका 3 और 4 हमें क्या बोलना है कैसे करता है How does God guide us? परमेश्वर हमारी अगुवाई कैसे करता है Yes, okay. He guides us with His rod and His staff.
और अपनी लाठी से और अपने सोटे से वो हमारी अगुवाई करता है। Yes or no? हाँ या ना? You know, you've seen a shepherd, how he guides a sheep. आपने कभी देखा है चरवाहे को कैसे वो भेड़ की अगुवाई करता है? What does he use? क्या इस्तेमाल करता है वो? He has a stick, right? He just pushes them. So even if someone is going away, he'll just tap them and they'll come back in line. और देखिए उसके पास में एक छड़ी होती है, यदि इधर से उधर हुआ तो एक पीछे से सटाक पड़ती है, वो No, सीधा हो satak जाता है। nahi. So the shepherd's voice, the rod and staff are different pictures that God uses to show that he guides us as our shepherd to keep us on the right path. और परमेश्वर यहाँ एक चरवाहे की लाठी और सोटे का तस्वीर को एक अलग रीति से इस्तेमाल करता है कि हमें अगुवाई करने के लिए परमेश्वर उन बातों का इस्तेमाल कर रहा है। Now, sometimes have you seen a shepherd walking in the front and the sheep following him, just listening to his voice? और देखिए आपने कई बार देखा होगा चरवाहा जो है हमेशा भेड़ों के आगे चलता है और भेड़ उसकी आवाज को सुन के उसके पीछे पीछे चलती है। Yes or no? हाँ या ना? So why does he walk in the front? और क्यों आगे चलता है चरवाहा? Okay. Because he's leading them on an unfamiliar path. और क्योंकि वो एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहा है जो भीड़ पहले से नहीं जानती है। Sometimes he's walking at the back and the sheep are walking in the front. और कई बार वो पीछे चलता है, भीड़ें आगे आगे चलती हैं। Why? क्यों? The path is very familiar to the sheep, very smart. The path is familiar to the sheep, so the sheep know the way and they're just walking. And the shepherd from behind, he just keeps tapping them with his staff or he's pulling them back if they go astray, correcting them and just keeping them on the course. और जो मार्ग है वो उन भेड़ों से प्रचलित है, वो पीछे इसलिए चलता है ताकि इधर उधर भेड़ जो जाए उनको थोड़ा सटीक कर दे, उनको पीछे से लेकर चले, उनको घसीट कर लेकर जाए ताकि मार्ग में वो आगे बढ़ती रहे। You're able to understand? आप समझ पा रहे हैं? So God leads us in both ways. Sometimes he goes ahead of us and sometimes he's guiding us from behind. All we need to do is just listen and follow him. और परमेश्वर हमारा दोनों तरीकों से हमारी अगुवाई करता है। कई बार वो हमारे आगे आगे चलता है, कई बार वो हमारे पीछे पीछे चलता है। बस हमें परमेश्वर को सुनने और उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। Now, what's the last one? और अंतिम बिंदु क्या है? Yes, the key is obedience. और आज्ञा मानना कुंजी है। So, for us to receive from God, to know his will and follow his guidance, we must have a heart of obedience and faith. और परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए, उसकी इच्छा को जानने के लिए, उसकी अगुवाई के अनुसरण करने के लिए हमारे हृदय के अंदर में विश्वास और आज्ञाकारिता होना अवश्य है। So sometimes it's painful to obey God in the flesh. और देखिए शरीर में कई बार परमेश्वर की आज्ञा मानना कष्टदायक होता है। So we must say, God, even if it's difficult to obey, I'm willing to obey. और हमें इस बात को कहना चाहिए, परमेश्वर मानने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आपकी आज्ञा को मानना। Look at what Proverbs chapter 3 verse 32 says. और नीति वचन 3:32 क्या कह रहा है देखिए। The secret counsel of the Lord is with whom? और भेद परमेश्वर के किसके साथ में होते हैं? With the upright, और yes. जो सीधे मन वाले हैं। Who is an upright person? और सीधे मन वाले कौन है? A righteous person, one who does what is right in the eyes of God, और एक ऐसा जन जो परमेश्वर की नजर में जो सही है वही करता है। one who's obedient, submissive, and willing to obey the Father's will. और एक जन जो परमेश्वर की इच्छा की आज्ञा मानने को तैयार है, उसके आज्ञा और अधीनता में अपने आप को जीवन जीता है। So that was chapter 1. Any questions? We have a question from Renate. और एक अध्याय समाप्त हो गया है, यदि प्रश्न पूछा गया है। So it says, I want to ask, I've been learning to follow what God wants, and I realize that part of that is also training my heart not to think negatively about Him. Sometimes I feel afraid that God's will means going through something very hard, like a storm, but I want to grow and trust in trust and learn to think positively. So, do you have any advice on how to build that kind of trust in God's will? Is it wrong to have such feelings? Okay.
So the person is learning to follow what God wants, और जो व्यक्ति है जिसने प्रश्न किया है वो सीख रहा है परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए and that person is training not to think negatively about God. और वो अपने आप को प्रशिक्षित कर रहा है कि परमेश्वर के बारे में नकारात्मक विचार ना करे And sometimes a person feels afraid that God's will means going through something very hard, like a storm. और वो महसूस करता है कि परमेश्वर की इच्छा में जाना कई बार बहुत कठिन होता है तूफान का सामना करने के बराबर But says, I want to grow and trust and learn to think positively. और वो कह रही है कि वो उसमें विकास करना चाहते हैं सकारात्मक सोच के अंदर में बढ़ना चाहते हैं So, do you have any advice on how to build that kind of trust in God's will? क्या आपके पास में कोई सलाह है कि हम परमेश्वर पे इस प्रकार के इस विश्वास को कैसे निर्माण कर सकते हैं Is it wrong to have such feelings? और ऐसी भावनाएं रखना क्या गलत है So, this is a very thoughtful and sincere question. और ये बड़ा विचारपूर्ण ईमानदारी हृदय का साथ प्रश्न है So, first, let me assure you that it's not wrong to have these kind of और feelings. सबसे पहले इस बात को कर लें कि इस प्रकार की भावनाएं इस प्रकार का महसूस करना गलत नहीं है So, many people in the Bible also wrestled with this same struggle. और बाइबल के अंदर में भी कई सारे लोगों ने इसी प्रकार की भावना के साथ मलयुद्ध किया अपने अंदर Even David, who was known as a man after God's own heart, often cried out of fear and confusion, but yet kept turning back and trusting in God. और देखिए दाऊद भी जो परमेश्वर के हृदय के समान एक जन है वो भी कई बार इस प्रकार के बातों और विचारों के साथ में मन में व्याकुल हो जाता है But what you can do is just be honest with God. और आप कर क्या सकते हैं आप परमेश्वर के सम्मुख ईमानदार रहें Be honest and just share your fears with और Him. ईमानदार रहने का मतलब आप जिस बात पर डरते हैं परमेश्वर के सामने उसे खुलकर कहें He also knows what is in your heart and what your feelings are. और देखिए परमेश्वर पहले ही जानता है कि आपके दिल में क्या है और आप कैसा महसूस करते हैं You can say, Lord, I'm afraid what your will might mean, but I'm willing more to trust you. और आप कह सकते हैं परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे लिए क्या बात कहेगी मैं उस बात से भयभीत तो हूँ लेकिन फिर भी आपके ऊपर भरोसा करता हूँ But one thing you can be confident of, और एक बात के ऊपर में आप किया भी हो सकते हैं that God's will for you is always good, pleasing, perfect. और परमेश्वर की इच्छा जो आपके लिए है वो हमेशा भली है अच्छी है और ग्रहण योग्य है And Jeremiah chapter 29, God says, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a good future. और देखिए यिर्मयाह 29 इस बात को कहता है जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई है वो भली है तेरे भविष्य के लिए मेरे पास योजनाएं हैं God's will for your life might be you will pass through challenges and storms, but it will not crush you. और देखिए परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरूर आपको तूफानों से होकर करना पड़ सकता है लेकिन वो किसी भी रीति से आपको दबा नहीं पाएंगे कुचल नहीं पाएंगे Because His heart is always good and loving and faithful. और क्योंकि परमेश्वर का हृदय हमेशा भला है अच्छा है ग्रहण योग्य है प्रेमी है And Romans 8:28 says, all things work for the good of those who love Him and called according to His purpose. और रोमियो 8 कहता है कि परमेश्वर के बुलाए गए और जो उसके उद्देश्य के अनुसार चलाए चलते हैं उनके लिए परमेश्वर की योजनाएं हमेशा भली है And one thing I do is always look back on God's faithfulness in my life. और मैं अपने जीवन में क्या करती हूँ हमेशा पीछे मुड़कर उन भलाइयों को देखती हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में की है I always remind myself, hey, when God can do that in that situation, He carried me through, He will do that for me even now. और मैं हर बार परमेश्वर को इस बात को याद दिलाती हूँ कि परमेश्वर ने उस समय में उस परिस्थिति में किया तो वो विश्वास योग्य है इस समय इस परिस्थिति में भी करने के That's why it's very important for you to remind yourself of everything that God has done, like He did for the Israelites. He told Moses, keep reminding, keep telling the people what I have done for them. और यही महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने आप को उन बातों को याद दिलाते रहें जो परमेश्वर ने किया वैसे ही परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों को ये बात बार-बार याद दिलाता रहे परमेश्वर का कार्य उनको याद दिलाता रहे Now, negative thoughts about God comes because of fear and lies, and that is always planted by the enemy, by और Satan. परमेश्वर के प्रति जो नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं जो झूठ आता है वो हर समय शैतान के या शत्रु के द्वारा हमारे
मन के अंदर में बोए जाते हैं। So that's become a practice for us. But what we need to do is replace those lies with the truth in God's word or the promises in God's word. और वो हमारे लिए एक अभ्यास बन जाते हैं, लेकिन हमें उनको दूर करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन का अभ्यास करना है, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर में बोलने की आवश्यकता है। And trusting God is not something that happens overnight, it happens little by little. और परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करना ऐसा नहीं है कि रात भर में आपके अंदर हो जाएगा, ये धीरे धीरे कर आपके जीवन के अंदर में जड़ पकड़ता है। So that is why we said to know God's will, you need to know His nature, His word, His promise, and that He desires for us to know His will, and for us to know that His will is good, pleasing, and perfect. और देखिए, इसीलिए हमने कहा कि अगर हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है जो हमारे लिए भली है, इच्छा है, योग्य है, तब हमें उसको जानना होगा, उसको भरोसा करना होगा, उसके ऊपर में विश्वास लाना होगा, तब हम जान पाएंगे। So you can choose either faith or fear. आप चुन सकते हैं, आपको विश्वास करना है या डर में जीना है। If you choose fear, then you will never step into God's will. But if you choose faith, even if things are strong, things are difficult, you know that God is the anchor in the storm. He can speak to your storm can be still. और यदि आप भय को चुनते हैं तो परमेश्वर के उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि विश्वास को चुनते हैं तो भले ही आप तूफान में चलेंगे, परमेश्वर आपको लंगर बनकर आपको थामे रहेगा, आपको डूबने नहीं देगा, आपको चूक चूक नहीं होने देगा, आपको थामे रखेगा। I hope that helped Renita. Renate, sorry. Thank you for strengthening my heart, ma'am. Yeah. Okay, this chapter is not included for the assessment. No. So for the assessment, you'll have only the chapters in the book Fulfilling God's Purpose for Your Life. और जो आपके असेसमेंट है उसमें वो पहली तक जो आपने पढ़ी थी, परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में परिपूर्ण करना, उसमें से ही आएगा। So I will give the assessment maybe anytime next week. और अगले हफ्ते किसी भी पल आपके ऊपर assessment आ जाएगा। So it can be even next Tuesday, maybe the second half, the last period. और अगले मंगलवार को मंगल कार्य आपके साथ हो जाएगा। So it will be for the in-person students, it will be in person. So all of you have to be here and do it in a sheet of paper. For the online students, I will post it in the Google Classroom, and you can do it, and I'll give you the submission date. और जो यहाँ पर मौजूद है, शारीरिक रीति से जिंदा है और सभी को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अपने घर का लिखना पड़ेगा, आपको कागज पर अपने प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। It will be all multiple choice questions. You just have to tick the right answer. और ये आपको केवल चिन्हित करना है, तो आप अपने हाथों का उपयोग करके उन्हें करें। So you'll have to read and come listen to the lectures, because most of my content, what is there, there's very less content in the book. I've given you a lot of extra content. So if you've written notes, good for you. If not, you'll have to listen to the lectures. And it's an open book exam. You can bring your book and look at it. But it's a multiple choice. You just have to tick the right answers. Okay. और देखिए, बहुत सारे विकल्प होंगे, आपको केवल चिन्हित करना पड़ेगा। आपकी किताबों में बहुत कम दिया गया है, मैंने बहुत सारा पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने लिखने का करना है, यदि नहीं है तो दोबारा से गूगल पे जाइए, वीडियो को देखिए, सुनिए, पढ़िए, और फिर आपकी वो सहायता करेंगे कि आप अपने असेसमेंट को अच्छे से कर पाएं। And don't think that the assessment is hard and I want to make life difficult for you. No, I just want you all to read and study and do well. और असेसमेंट बहुत कठिन नहीं है, ऐसा नहीं चाहते कि आपका जीवन बड़ा दुर्भर कर दे हम, नहीं, हम इतना चाहते हैं कि आप पढ़ें, वचन समझें, आपका जीवन उन्नत हो, इतना ही हमारा प्रयास है। And for the online students, I would request you, please don't, you can use your books and the videos, lectures, but please don't use any other means to get the answer. Be honest and do it, because even if you're not watching, God is watching you. Right? That's more important. Yeah, this 1 hour. I'll give you 1 hour. Yeah, for the online in-person students, 1 hour. Online students, I'll give you a day or two to finish it. Because some of them are working. They don't have the time. They're working. So, yeah.
Okay, if there's no other questions, we'll end class. और यदि प्रश्न नहीं है तो हम समाप्त करेंगे Thank you everyone for joining class. I'll see you और आप सभी का धन्यवाद next सुनने week. के लिए। Thank अगले you. हफ्ते फिर मिलेंगे। Thank you.